हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से इस सुंदर और पवित्र दिन में, इस चुने हुए दिन में, इस महिमा स्तुति आराधना के लिए स्थापित दिन में हम सब एक साथ एकजुट मिल के उसकी महिमा स्तुति आराधना कर रहे हैं। और उस ऑनलाइन संडे स्कूल में जो कि CNI मसीह मंदिर चर्च इंदौर के द्वारा से सारे बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है, उसमें अपनी सहभागिता को प्रकट कर रहे हैं। आइए बच्चों, एक सुंदर प्रस्तुति को हम देखते हैं जो बच्चों के विश्वास को अभिव्यक्त करता है, उसके दूसरे आगमन को प्रशस्त करता है और कोविड-19 और हर महामारी से, हर दुख तकलीफ कष्ट से हमें बचाने की पवित्र वचन के माध्यम से हमें अगुवाई प्रदान करता है। एक सुंदर प्रस्तुति को हम देखते हैं। इससे आप जरूर स्मरण करें और इससे मार्गदर्शन हासिल करें। आइए हम उसकी महिमा स्तुति में इस ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति सहभागिता में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस दिन को दिखाने के लिए। थैंक यू जीसस। आइए बच्चों, हम इस सुंदर प्रस्तुति को एक बार देख लेते हैं। Hi, we're back! And today we have a very important question for you. How important is hope? We are told in the Bible that faith, hope, and love are very important. Of course, the greatest is love. But how about hope? Hope is quite important too, it seems. The Bible says in Romans 8:24, For we are saved by hope. wow, we are saved by hope. I never knew that. How does hope save us? You see, hope looks to the future. It looks beyond the present circumstances. It doesn't take into account what is happening here and right now. It allows you to dream a little bit. You see, I have hope too. I hope for heaven. I can't wait to play with the lions. And the bears. And the cheetah. But you know, this pandemic It's made many people lose hope. because they're looking at what they see. They're looking just at the earth. And to be honest, When we look at what's happening right now, we can get very sad. very discouraged. People have lost jobs, The economies around the world. seem to be collapsing Many people are stressed out about the future. because they're just looking at the present. And because of that, They lose hope. they forget to hope. But how can we have hope today? Because remember, the Bible says, We are saved by hope. so how can we have hope? Romans 15:13 says, Now the God of hope Fill you with all joy, and peace in believing, that ye may abound in hope. through the power of the Holy Ghost. The God of the Bible, He is called a God of hope. not only is God love, God is hope also. that means If you have God, you have hope you don't need to look outside at the world around us. to see if we should have hope or not. We can always have hope. If we have God in our hearts, And if we have hope, the Bible says, we will have joy and peace too. how can we have this hope? Remember what Romans 15:13 says? Through the power of the Holy Ghost. We must have the Holy Spirit. He must abide in our hearts. Because the Holy Spirit is God too. And the only way to get the Holy Spirit is We have to pray. Luke 11:13. If you then being evil, Know how to give good gifts to your children. how much more will your heavenly Father? Give the Holy Spirit to those who ask Him. We must ask God. That's all we need to do to have hope. If we ask for the Holy Spirit, God will give Him. He promised. But there's one more Bible text. Psalms 130 verse 5. I wait for the Lord, my soul waits. And His word do I hope. God's word, the Bible, also gives us hope. Pray every day. And you hope, hope, hope. If we would spend time reading the Bible, If we will pray every day, God will help us look to Him. and in Him there's all hope. We would never need to feel discouraged We will never feel depressed. because God is our strength. He is our help in trouble. He would help us to hope for the future. If you have been losing hope lately,
because of the pandemic. If you feel there's nothing to hope for, we would like to pray for you today. Please close your eyes with us. Our Father in heaven, please help whoever is listening to spend time reading the Bible again and to pray more, to ask for your Holy Spirit. I know you hear them because you love them. Please give them hopes in your hearts again. Help them to see Jesus again. In Jesus' name, amen. God bless you all. And don't forget to read your Bible. Keep praying for the Holy Spirit. See you next time. And remember, Jesus loves you. प्यारे बच्चों, मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस सुंदर प्रस्तुति को देखने के पश्चात आपका विश्वास बढ़ा होगा। आप दृढ़तापूर्वक उन सारी महामारियों का, विपत्तियों का सामना करने में समर्थ हुएंगे और वचन के माध्यम से जो इन बच्चों के द्वारा से आप के सामने रखा गया, आपने अपने विश्वास को और दृढ़ किया होगा। आइए बच्चों, हम अब इस ऑनलाइन संडे स्कूल में उसकी महिमा स्तुति आराधना में आगे बढ़ते हैं और आज जो अगुवाई हमें प्रदान करने जा रहे हैं स्तुति महिमा में, वे हैं नित्या प्रसाद। जी हाँ, नित्या प्रसाद एक सुंदर गीत को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी। उसके पश्चात संदली खिमला, जी हाँ संदली खिमला एक सुंदर गीत को हमारे सामने लेकर आ रही हैं और उसके पश्चात आयुष एवं दीप शिखा मैडा उसकी महिमा स्तुति एक सुंदर गीत के द्वारा से हम सभी के लिए करेंगे। सो आइए हम उसकी स्तुति महिमा में आगे बढ़ते हैं और नित्या प्रसाद, संदली खिमला, आयुष और दीप शिखा मैडा के द्वारा से अगुवाई को प्राप्त करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. My name is Nitya Prasad. I'm going to perform one song. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो करो उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो करो उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालयों को चढ़ा, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तब वो बीच जो पड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हुआ पड़ा है, हर काम उसके रहते हुआ पड़ा है। कभी हाँ ना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हाँ ना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने से वो सामने खड़ा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू। Hello friends, Jai Masih ki, Hallelujah. My name is Sandali Khimla and today I am going to sing a short song. Its name is Open Your Heart to Jesus. Let's start. Open your heart, open your heart, open your heart to Jesus.
into my heart, into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Open your heart, open your heart, open your heart to Jesus. He knocks today, do not delay. Open your heart to Jesus. Thank you. आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की आराधना करते हुए हम एक गीत को गाएंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे ना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे ना चाहते हैं। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों, आज एक बर्थडे प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे सामने आई है। हमारे संडे स्कूल की एक बच्ची है जिसका कि आने वाले सप्ताह में बर्थडे है। 9 जुलाई को उसका बर्थडे है। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और उसे हम अपनी बधाइयाँ प्रेषित करेंगे। जी हाँ, आशिया ऐजक, जी हाँ, आशिया ऐजक का बर्थडे 9 जुलाई को है। उनके जीवन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आशिया ऐजक के जीवन के लिए, उनके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपसे करती हैं, और उस अद्भुत संगति सहभागिता के लिए जिसमें कि वो सहभागी होके अपना योगदान प्रदान करती है, आपकी महिमा स्तुति आराधना करती है। आपने उसे उसके जीवन में बढ़ाया है और पिता परमेश्वर हर प्रकार से सुरक्षित रखा है। उसे अपनी अद्भुत आशीषों से और अपने दान वरदानों से भरपूर किया है। उसके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं और पिता परमेश्वर विनती प्रार्थना करते हैं कि आपका भय, आपका विश्वास, आपका प्रेम सदा उसके जीवन में बना रहे और वह अपने जीवन में आपकी अद्भुत आशीषों को प्राप्त करते हुए निरंतर आगे बढ़ती चली जाए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. इन स्तुति महिमा की सुंदर प्रस्तुतियों के लिए मैं नित्या प्रसाद को, संदली खिमला को, आयुष और दीपशिखा मैडा को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर उन्हें उनके दान वरदानों में और अधिक बढ़ाए ताकि वे उसकी स्तुति महिमा निरंतर अपने जीवन के द्वारा से करते चले जाएं और उसकी सेवा में वे निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। प्यारे बच्चों, आइए हम आज एक उत्तम मार्ग की शिक्षा में आगे बढ़ते हैं जिसे लेकर हमारे मध्य में आ रहे हैं, और कोई नहीं, हमारे प्रिय पादरी साहब रेवरेंड जे जेम्स बॉन्ड साहब एक सुंदर शिक्षा को लेकर हमारे मध्य में आ रहे हैं। बच्चों, इस शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कर लेना और उनकी शिक्षाओं का, उनकी उत्तम वाचाओं का आप अपने जीवन में अनुसरण करना। प्यारे बच्चों, रेवरेंड जे जेम्स बॉन्ड साहब हैं और इस संदर्भ में जो वचन पाया जाता है उसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रही है एनी सलीन। जी हाँ, एनी सलीन। प्यारे बच्चों, अपनी अपनी बाइबलों को निकाल लीजिए, उन्हें अपने पास रखिए, और जब आपके सम्मुख बाइबल पढ़ी जाती है तो आप भी साथ उस संदर्भ को खोल के हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ उस वचन को पढ़िए जो कि पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय। जी हाँ, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय, पहली आयत से 10वीं आयत तक, पहली आयत से 10 आयत तक इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी एनी सलीन, और उसके पश्चात हम एक सुंदर शिक्षा को रेवरेंड जे जेम्स बॉन्ड के साहब के द्वारा से सुनेंगे और उसके एनिमेशन को भी देखेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जी। आज का बाइबल का पाठ पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय पद 1 से लेकर 8 तक। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय पद 1 से लेकर 8 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे ध्यान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। और शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतीत है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उसने सब बातें बताकर याफा को भेजा। ये प्रभु का वचन है। प्रभु इसे पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आप सभी छोटे बच्चों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह कहता हूँ। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अवसर मुझे दिया कि मैं आपके मध्य में उसके वचन की सेवा करूँ। धन्यवाद देता हूँ मिस्टर राजेश पाटिया जी की भी, जो हमारे मसीह मंदिर चर्च से इंदौर के संडे स्कूल के सुप्रिटेंडेंट हैं, और उनके लीडरशिप में उनके साथ जो रहकर जो कार्य कर रहे हैं अर्थात उन तमाम टीचर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने आशीर्वाद दे। जैसे कि हमने जो वचन को पढ़े, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय वचन 1 से लेकर 8 पद तक, यहाँ पर मेरे छोटे बच्चों जैसे कि कुरनेलियुस करके व्यक्ति थे, और यह इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। मतलब यह जो इतालियानी मतलब इटालियन देश के एक मिलिट्री या एक प्रकार से जो 100 सैनिक उनके अंडर में रहते थे और उनको वह लीड करते थे। परंतु ये अंकल या कुरनेलियुस अंकल वे क्या करते थे? परमेश्वर का भय को रखते थे। वे एक भक्त मनुष्य थे। भक्त इन सेंस अर्थात भक्त लोग क्या होते हैं?
वे अपने कार्यों में, अपने चाल चलन में, अपने बोलचाल में और अपने व्यक्तिगत जीवन में और सब उनका लाइफ स्टाइल एक प्रकार से बहुत ही डिवोशन रहता है। और इसीलिए वहाँ लिखा है कि वह भक्त था, ही वॉज ए डिवोटेड मैन, और वह अपने सारे घराने समेत, खाली वह अकेले नहीं, पूरे घराने समेत क्या करते थे, परमेश्वर से डरते थे। तो मेरे प्रिय बच्चों, यह इन दिनों में हम जो एक प्रकार से जो कोरोना और जो महामारी फैला है, परंतु इन दिनों में प्रभु हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर का डर और परमेश्वर के भय में चले और हम प्रभु की संगति में हम आए। वहाँ देखते हैं मेरे प्रिय वचन 2 में, और कहता है और यहूदी लोगों को बहुत दान करता था। सो ही वॉज ए जेनरस मैन, ही इज टू हेल्प द पीपल, अर्थात बच्चों को, अर्थात जो गरीब या जो कमज़ोर, ऐसे लोगों को बहुत हेल्प करता था, दान देता था। फिर यह क्या करते थे अंकल, एक प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और जैसे कि ये अंकल एक प्रकार से ही वॉज ए डिवोटेड मैन, और वह अपने घराने समेत परमेश्वर से डरते थे और बहुत ही एक प्रकार से हेल्पिंग हैंड थे, दान देते थे और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। उनके जीवन में ये 4 गुण थे और वे परमेश्वर से जब प्रार्थना करते थे तो एक दिन क्या हुआ, उनके जीवन में दोपहर के समय में परमेश्वर ने उनसे मिला, या यीशु मसीह उनसे मिला और उनकी प्रार्थना को सुना। हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस, उसने उससे ध्यान देकर कहा, ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। तो मेरे प्रिय छोटे बच्चों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप या हम सब प्रभु का डर रखें और प्रभु के लिए हम एक सच्चा जीवन को जिए और हम प्रभु से प्रार्थना करें। क्या मैं आपसे पूछूं, क्या आप लोग प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हो? क्या प्रतिदिन क्या आप लोग प्रेयर करते हो? क्या कितना देर आप लोग प्रेयर करते हैं? कितने बार प्रेयर करते हैं? यहाँ ये अंकल दोपहर में जाकर 3 बजे ना, करीब 3 बजे ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने उन्हें, या प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया और क्या कहा अपने दूत के द्वारा, दूत ने क्या कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के लिए, स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे। अर्थात ही लिव्ड ए लाइफ, और ऐसा जीवन जिए जैसे कि उससे उनका दान और उनकी प्रार्थना को परमेश्वर ने क्या किया, सुना। तो आज आप और मैं क्या परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं? क्या एक बार एक अंकल, एक कहानी ना मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अंकल थे, वे प्रतिदिन दोपहर में जब वे कार्य करते थे, अर्थात जब वे ऑफिस जाते थे, तो ऑफिस में जब लंच का टाइम होता था, उस लंच के टाइम में वे जल्दी से लंच करते और लंच करने के बाद वे तुरंत क्या करते थे, एक जगह में जाकर वे प्रार्थना करते थे प्रतिदिन, हर दिन। पर एक दिन क्या हुआ, उनको लगा कि मेरी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता नहीं है, और वह ऐसी सोच में एक दिन क्या हुआ, वे गए नहीं, प्रार्थना करने गए नहीं वहाँ पर। परंतु प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जहाँ वो अंकल जाते थे, वो वहाँ पर जाकर खड़े रहे और ये अंकल कहाँ गए थे, पार्क में जाकर बैठ गए थे, क्योंकि मेरी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, परमेश्वर है तो क्यों नहीं मेरे सामने आ रहे हैं। और ये अंकल जाकर अलग से जाकर पार्क में ऐसे बैठे थे और वहाँ पर प्रभु ने उनसे बातें की कि बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ क्या कर रहा है? तो कहने लगा, मुझे तो मैं प्रतिदिन में प्रार्थना करता था, पर मुझे कुछ फीलिंग्स नहीं होता था कि आप मुझसे बातें कर रहे हैं। परंतु प्रभु ने कहा कि मैं प्रतिदिन आता था, आज भी मैं आया था, तेरे आने से पहले मैं वहाँ आया था, पर तू आया नहीं, तू नहीं आया। तो इसीलिए आपसे मेरा यह रिक्वेस्ट रहेगा, अनुरोध करूँगा कि कभी भी आप प्रार्थना करना ना भूलें और प्रभु को दान देना ना भूलें। वो व्यक्ति दान देते थे, आज आप पर मैं क्या दे सकते हैं, प्रभु को अपने जीवन को दें,
ऑफ कोर्स जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों को हम क्या करें, हेल्प करें। और उससे बढ़कर वे, उनका परिवार एक प्रकार से क्या था, वे परमेश्वर से डरते थे। तो प्रभु के साथ हम सब, आप अपने बच्चों, आप अपने माता पिता को और अपने भाई बहनों को लेकर निरंतर क्या करना, प्रार्थना करना चाहिए। फैमिली प्रेयर, पर्सनल प्रेयर, ये सब होना जरूरी है। और जब यह सब होता है तो प्रभु आपको आशीर्वाद देता है। और फिर यह अंकल क्या थे, कितना बड़ा पोस्ट में थे, बहुत ही एक हाई पोजीशन में थे, परंतु उसमें भी उस अंकल ने परमेश्वर को स्मरण किए, प्रभु को स्मरण किए। आपका कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, पर समय निकालना आपका कार्य है। समय निकाल कर हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर को देता है। और फिर ये अंकल की प्रार्थना को प्रभु ने सुना। और एक दिन ऐसा हुआ, पतरस या सैमुअल पतरस उसके घर में आता है और वे सब मिलकर प्रार्थना की और वह परिवार एक प्रकार से प्रभु की आत्मा से भर गए और प्रभु ने उन्हें आशीषित किया। तो यह प्रभु यीशु मसीह आपको भी आशीर्वाद करेगा। तो एक वचन में पढ़ता हूँ, यहाँ लिखा है प्रेरितों काम 10:35, प्रेरितों काम 10:35। अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे पाता है। अर्थात परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वह सबके लिए न्यायी है। आप जो करेंगे, आप जो प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु उसे देखता है और प्रभु उसका फल आपको देगा। इसीलिए यह प्रभु यीशु मसीह उस कॉर्नेलियस अंकल को जैसे आशीर्वाद दिए, वैसे ही आपको भी आशीर्वाद करेगा, आपको ऊंचे मार्ग पर रखेगा या ऊंचे पद पर रखेगा। अगर आप और मैं या हम सब एक प्रभु का भय और प्रार्थना और दान और प्रभु की हम जब सेवा करते हैं तो यह प्रभु हमारी स्तुति लेगा और वह हमें आशीर्वाद देगा। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद करे। आमीन, आमीन। Cornelius was a man who lived in Caesarea. He was an officer in the Roman army, and he and everyone in his house worshiped God. Cornelius helped other people, and he always prayed to God. One afternoon, Cornelius saw a vision of an angel of God coming to him. The angel said, "Cornelius." Cornelius was afraid. He looked at the angel and said, "What is it?" The angel said, "God has heard your prayers, and he has seen how you help others." Then the angel instructed Cornelius to send for a man named Peter, who was in the city of Joppa. Cornelius sent 2 of his servants and 1 soldier to Joppa. The next day, as the servants and soldiers were nearing the city, Peter went up on the roof of the house to pray. He was hungry, but while he was waiting for the meal, Peter saw a vision. In this vision, Peter saw something like a large sheet coming down from heaven. In the sheet were all kinds of animals, reptiles, and birds. Then a voice said to him, "Get up, Peter, kill and eat." "No, Lord," Peter said. "I have never eaten anything that is not clean or not used for food." Again, a voice said to him, "God has made these clean. Do not call them unfit to eat." This happened 3 times, and then the whole thing was taken up into heaven. Peter tried to understand what the vision meant. Then the men Cornelius had sent arrived at the gate. They explained that Cornelius had seen a vision, and an angel instructed him to send for Peter. So the next day, Peter went with the men to Caesarea. When Peter got to Cornelius' house, he began to speak. Peter explained that God does not consider people to be better than others. God had sent good news to the Israelites. Jesus is Lord of all.
everyone who believes in Jesus will have their sins forgiven, Peter said. While Peter said this, the Holy Spirit came down on those who heard the message. Not just the Jewish people, but the Gentiles or non-Jews too. The Jewish believers were amazed. Cornelius, his friends, and his relatives were baptized in the name of Jesus, and Peter stayed with him for a few days. God showed Peter that just as there is no clean and unclean food, there are no clean and unclean people. God calls believers to tell everyone the good news about Jesus, no matter who they are or where they come from. Jesus is Lord of all. इस सुंदर उत्तम मार्ग की शिक्षा के लिए मैं हमारे प्रिय पादरी साहब, प्रेस्बिटर इंचार्ज मसीह मंदिर चर्च सीएनआई इंदौर को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और मैं उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके एनकरेजमेंट के लिए जो कि वे सदैव संडे स्कूल को प्रदान करते हैं, उसके लिए भी मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं एनी सेलिन के लिए, जिन्होंने बाइबल के पढ़ने में हमारी अगुवाई की और एक उत्तम मार्गदर्शन इस शिक्षा के द्वारा से हम सभी को प्राप्त होने पाया। प्यारे बच्चों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 11 तारीख को, जी हाँ 11 जुलाई को एक बार फिर से हम जूम के संडे स्कूल की संगति में मिलेंगे। जूम के संडे स्कूल की संगति को प्रोत्साहित करने के लिए मैं आपके समक्ष 2 स्क्रीनशॉट्स रख रहा हूं, जो आपको एनकरेज करेगी कि आप भी इस जूम की संगति में सहभागिता प्रकट करें, जो कि रेचल पवार के द्वारा से प्रत्येक अल्टरनेट संडे को लिया जाता है। सो बच्चों, इस जूम की संगति में आप अवश्य आएं और इसका आत्मिक लाभ जरूर से उठाएं। थैंक यू। प्यारे बच्चों, हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति सहभागिता के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, और आज के इस पवित्र दिन के लिए, आज के इस आशीषित दिन के लिए, उन स्तुति महिमा के गीतों के लिए और उस उत्तम मार्ग की शिक्षा के लिए और आपकी अद्भुत संगति सहभागिता के लिए, सारे बच्चों के जीवन के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं, और इस सुविधा के लिए जिसके द्वारा से हम सब इस ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति सहभागिता में, जो कि मसीह मंदिर चर्च सीएनआई इंदौर के द्वारा से आयोजित की जाती है, आप सब सहभागी हुए। प्यारे बच्चों, अगले सप्ताह 11 जुलाई को एक बार फिर हम जूम की संगति में मिलेंगे, और मैं आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि रेवरेंड जे जेम्स बॉन्ड साहब अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा से और उस आशीष वचन के द्वारा से इस संगति सहभागिता को समाप्त करेंगे। सो लीजिए, जेम्स बॉन्ड साहब हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और उनके आशीष वचन से इस कार्यक्रम को, इस संगति सहभागिता को हम समाप्त करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह जी, जैसे कि वह कर्नेलियस अंकल को आपने सहायता किया, जैसे कि वह अंकल जिस प्रकार से आपके पास प्रार्थना करते थे और प्रभु जी हेल्प करते थे, दान को देते थे और आपसे डरते थे, और प्रभु जी एक प्रकार से वे भक्त थे, डिवोटेड मैन थे, वैसे हम सबों को बनाइएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे मसीह मंदिर चर्च के इस संडे स्कूल के लिए, इस संडे स्कूल में उन तमाम प्रिय लोगों के लिए जो भी अर्थात वे यदि कोई किसी भी कलीसिया के बच्चे क्यों ना हो, कहीं से जहाँ कहीं से जुड़े हों, और जो कोई इस वीडियो को देख रहा है, हे मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हमारे तमाम छोटे बच्चों का आशीर्वाद कीजिएगा, हर एक बीमारी से बचाइएगा। विशेष तौर से हम प्रार्थना करते हैं जैसे कि हमारे देश में यह जो महामारी जो फैला है, या यह जो पैंडमिक है, प्रार्थना करते हैं जो 3rd वेव का जो एक प्रकार से प्रिडिक्शन है, और कह रहे हैं कि यह 3rd वेव
बच्चों को अफेक्ट करेगा या अटैक करेगा। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपने कहा छोटे बच्चों को मेरे पास लाओ। हे मेरे प्रभु जी, हम इन छोटे बच्चों को आपके पास लाते हैं, आप जो प्रेम करते हैं और निरंतर। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम सब छोटे बच्चे मिलकर प्रार्थना करते हैं, निरंतर हमें यह अनुग्रह दीजिएगा कि हम आपके भय में, आपके प्रभु जी भक्ति में, और वैसे प्रभु जी हम आपसे प्रेम करके आपके से प्रार्थना करने वाले होने पाए, और प्रभु जी हम दान को देने वाले होने पाए प्रभु के नाम की महिमा के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ छोटे बच्चों के साथ आप बने रहिएगा, हर एक छोटे बच्चों को आप अपने पंखों तले छिपाइएगा। कोई बीमारी, कोई कमजोरी ना तो उन छोटे बच्चों को या उनके माता पिता को या इनके भाई बहनों को या इनके नियर एंड डियर को या इनके फ्रेंड्स को या किसी को भी छूने ना पाए। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, चंगाई को दीजिएगा, छुटकारा को दीजिएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक बुराइयां दूर होने पाए, हर एक यह प्रभु जी कोरोना वायरस का प्रभु जी जो उसका जो इम्पैक्ट है वह कम होने पर, नष्ट होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में उसकी तमाम तीव्रता खत्म होने पाए। जो भी किसी भी वेरिएंट के रूप में वह आ रहा है वह यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने पाए। प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों का आशीर्वाद कीजिएगा, ज्ञान बुद्धि समझ और स्मरण शक्ति को प्रदान कीजिएगा, आशीष को जोड़िएगा, बड़े कार्य कीजिएगा। हालेलुया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन तमाम छोटे बच्चों की रक्षा कीजिएगा, आपकी लहू की आड़ में छिपाइएगा। हम साथ के साथ प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के टीचर्स के लिए, सुप्रिटेंडेंट राजेश पटिया जी के लिए और रिया पवार के लिए, मुस्लिम पार्टी के लिए, और वैसे जो सपोर्टिव जो स्टाफ हैं, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक को आशीर्वाद कीजिएगा और हर एक की रक्षा कीजिएगा और अपने लहू की आड़ में छिपाइएगा, बड़े कार्य कीजिएगा, हर एक अपनी पवित्र लहू की आड़ में छिपाइएगा। धन्यवाद देते हैं। हमारे देश का रक्षा कीजिएगा, हमारे देश की रक्षा कीजिएगा, देश के लोगों को आप सुरक्षा दीजिएगा। और वैसे हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्रता से प्रभु जी चर्च खुलने पाए, और वैसे हम प्रार्थना करते हैं स्कूल भी खुलने पाए ताकि हमारे छोटे बच्चे प्रभु यीशु मसीह नाम में स्कूल जाने पाए, जाकर वहाँ पढ़कर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर आपकी महिमा और प्रशंसा करने पाए। हे मेरे प्रभु जी, कॉर्नेलियस का परमेश्वर, आप इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देकर अपने आशीर्वाद कीजिएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिएगा पिता, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र सहभागिता आप सबों के साथ आज से लेकर प्रभु के आगमन तक बनी रहने पाए। आमीन। जय मसीह की।